So good evening to all of you once again. See over here, I was talking to you about last time about what is entropy. Entropy is basically is measurement of disorder. Okay. This form of entropy is known as physical form of entropy. By using this physical form of entropy, we can understand certain kinds of reactions. For an example, why H2O ice solid easily convert to liquid on its own. ये अपने आप होता है. What is the reason कि अपने आप होता है? Because second law of thermodynamics हमको बताता है कि भाई spontaneous reaction में, okay, for all spontaneous processes, entropy increases. Entropy increases. This reaction is taking place on its own. H2O solid to H2O liquid. ये हम समझ पा रहे थे because हमको ये भी पता है भाई entropy of liquid is more than the entropy of solid. तो ये यहाँ पे दिखता है. Entropy is measurement of disorderness. On the basis of that, we can find out by using physical form of entropy, we can say ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने आप क्यों बढ़ रहा है. बराबर है कि we could say that. Even we could say this example, or we could explain this example also. Suppose if we have two containers connected by a valve, and in this container, suppose there is some gas is filled up over here, and if you open this valve, then this gas transfers from one container to another container, because during that transfer entropy increases. We can see disorderness is increasing. But the problem was over here, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि अगर ऐसा रिएक्शन है HCl liquid plus NaOH liquid gives you H2O liquid gives you NaCl aqueous, चारों के चारों लिक्विड फॉर्म में है. यहाँ पे डिसऑर्डरनेस कैसे मेजर करें? We can't measure disorderness by using this form, or other say physical form of entropy. We can't use it over here. So we need another form of entropy. So to find out another form of entropy, okay, what are we going to do? We are going to do a very simple thing. First of all, let me keep this thing aside. Okay, let me get my board here. Okay. To understand this reaction, okay, we have to use, or rather say we have to learn mathematical form of entropy. What do we need to learn? Mathematical form of. What is mathematical form of? Okay. By the way, entropy is denoted by S. Entropy is denoted by S. And change in entropy in any process is given by a formula, mathematical formula, heat exchange reversibility, Q reversible upon heat exchange reversible. And Q reversible is basically delta H by delta, क्योंकि Q reversible आपके पास क्या है? Delta H, change in enthalpy. So delta H is basically what? Delta H by T. Okay. Delta H is basically, we call it, we measure it in Joule. Temperature we measure in Kelvin. So unit of entropy is basically Joule per Kelvin. Joule per, आप लोग तो समझ में आ रहा है. मैथमेटिकल, हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं. और बोलेंगे ओके, बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल फॉर्म. अगर हम इसकी बात कर रहे थे कि सपोज मुझे जानना है
कि ये रिएक्शन अपने आप होगा या तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, okay, जिसको रखा गया है लेट्स से दूसरे एक रूम के अंदर रखा गया है। ये कंटेनर और इसके अंदर हमने ये रिएक्शन करना है। इसके अंदर थोड़ा सा HCl डाला है, थोड़ा सा NaOH डाला है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। अगर हमको फाइंड करना है कि ये रिएक्शन एंट्रोपी के बेसिस पे अपना हो रहा है या नहीं, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी क्या है, मैं बता दो जरा सा। ये हमारा हम इसको यूज करें किस तरीके से, इस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। ये है सिस्टम और ये क्या है। हम एक काम करें, we are going to do very simple thing, we are going to find out कि ये सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो हो रहा था ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सिस्टम के अंदर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा H by T, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सिस्टम के अंदर एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा एच सिस्टम इक्वल टू डेल्टा H by T। हम क्या करेंगे, हमारा गोल ये है कि ये रिएक्शन जो हमको दिया गया रिएक्शन अपने आप हो रहा है या नहीं हो। तो पहले सिस्टम के अंदर एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करके सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे, फिर किसका एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे, सराउंडिंग, एंड लास्ट में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एस डॉट इक्वल डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस। What are the steps we have done? We have a mathematical form. हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी है, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा H by T। वही फॉर्मूला यूज करके हमने सिस्टम का फाइंड किया कि भाई ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम का डेल्टा एस कितना चेंज हुआ था और उसका टेम्परेचर क्या था, ड्यूरिंग प्रोसेस सराउंडिंग में कितना चेंज हुआ, सराउंडिंग में कितना चेंज हो रहा है, सिस्टम में कितना चेंज हो रहा है, वो दोनों फाइंड किए। फिर उसका हमने टोटल लगाया, फिर हमने क्या किया, उसका इसके टोटल की 3 वैल्यू हो सकती है आपके पास, इसके टोटल की कितनी वैल्यू हो सकती है, ओके, दिस डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, कितनी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, ये पहला पॉइंट। या तो फिर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, या तो फिर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा लिखा है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आता है, क्या लिखा उन्होंने, फॉर ऑल spontaneous processes, ऐसे कर दिया, entropy of universe increases, entropy of universe increases
यस नो. व्हाट डज मीन बाय यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. दैट्स व्हाट वी हैव डन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ को मैं जरा ऊपर भी ले लेता हूं. एक्चुअली मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं. मैं उसको थोड़ा छोटा करके साइड. हमने सेकंड लॉ लिया. सेकंड लॉ हमको क्या बता रहा है? सेकंड लॉ बताता है for all spontaneous processes, entropy of universe increases. Entropy of universe increases. Okay, entropy of universe क्या होगा? Delta S total equal to delta S system plus delta S surround. उसकी हमारे पास तीन वैल्यू आती है ये रिएक्शन के लिए. तीन हो सकती है, तीनों में से कोई भी एक ही हो सकती है. तीनों के लिए एक साथ पॉसिबल नहीं. अगर ये रिएक्शन में डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, रिएक्शन अपने आप, बिकॉज सेकंड लॉ वो सपोर्ट करता है. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस. मतलब क्या होगा? डेल्टा एस टोटल हैज टू बी, अगर ये रिएक्शन में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आया, देन रिएक्शन अपने आप हो रहा है. लेस देन 0 आया, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ये हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, ये होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड अगर इक्वल टू 0 हुआ, देन रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. देन रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछना है. अगर आप आते हो मेरे साथ पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79, ओके, पैराग्राफ नंबर 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड कॉलम, यहाँ पे आपको पूछा गया है